Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 330 E-Commerce. Dear students, we are studying Hypertext Markup Language, HTML, and we have completed part 1 in the last lecture. And please remember that we are presently studying the track 2. This part 2 is the part of the track 2 lecture, because in the track 1 lecture we are covering the textbook, and as I have already informed you that in track 2 we will be covering on the different technologies of e-commerce. So what I have intention to cover in today's lecture is HTML head, style, CSS, images, tables, links, blocks, layout, forms and input, or if I could find some time, I would like to go quickly through iframes. Okay? Or inshallah, with this lecture, we will be able to cover the major introduction of the HTML that I have planned to deliver in this particular course. So, the topic is HTML head. HTML head is the HTML element. आपको याद होगा हमने HTML tags की बात की थी, HTML elements की बात की थी. So the head element is a container for all the head elements. यानी कि ये एक ऐसा elements है that contains further elements that are described within the head elements. So inside the head elements we can include script, that are the instructions to the browsers where to find the style, sheets, provide meta information and many more. The elements that are that can be provided or that are the part of the head elements are title, style, meta, link, script, no script and base. Okay, so we'll quickly go through all these one by one. The title tag defines the title of the document required in all HTML or XHTML documents. Purpose क्या है? The title element defines a title in the browser toolbar. याद है जब हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं, एक टैब ओपन होता है, उस टैब का एक डिफ़ॉल्ट नाम होता है. और ये नाम कहाँ से आता है? कि ये नाम आता है जनाब जिस पेज को आप ओपन करते हैं, if that particular page contains certain title, तो फिर वो वाला टाइटल उस जगह पर डिस्प्ले हो जाता है. अदरवाइज ब्राउज़र जो है एक अपना डिफ़ॉल्ट जो है नेम वो उसको असाइन कर देता है. सेकंड यूज क्या है? इट प्रोवाइड्स ए टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट इज एडेड टू फेवरेट. आपको कोई पेज पसंद आता है, आप क्या करते हैं? उसको सेव कर देते हैं एज ए फेवरेट में. जब फेवरेट में सेव होता है तो जाहिर है उसका कोई टाइटल होना चाहिए. अगर वो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट टाइटल होगा, दैट विल नॉट बी सर्टेनली अप्रोप्रिएट, जो कि प्रिसाइजली उस पर्टिकुलर पेज को डिफाइन नहीं करेगा. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट यू डिफाइंड अ टाइटल सो दैट कि अगर कोई किसी यूजर को आपका पेज पसंद आ जाता है, देन इफ ही और शी इज गोइंग टू डिक्लेयर इट एज ए फेवरेट, देन इन द फेवरेट ड्रॉप डाउन मेन्यू इट शुड बी सेव्ड विद द अप्रोप्रिएट टाइटल दैट यू हैव असाइन्ड टू दैट पर्टिकुलर पेज. Thirdly, the search engine, they search the contents of the page, contents of your portal, content of your website, or the contents of millions of the websites through scanning the pages, web pages. So the web engine with the search engine, which are very intelligent, based upon some very interesting algorithms, they just extract the information. They use artificial intelligence and then they extract useful information. So आपने ना सिर्फ ये कि टाइटल डिफाइन करना है, और इसके साथ साथ आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि टाइटल जो है शुड कंटेन सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिटेल्स और द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड ऑन दैट पर्टिकुलर पेज.
ताकि जो सर्च इंजन है वो प्रिसाइजली आपके पेज से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे और वो प्रेजेंट करे टू द यूजर हु is searching for certain contents or certain information through search engine. The simplified HTML document हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि HTML होता है और HTML के बाद अब आप नेक्स्ट जो एलिमेंट यूज कर सकते हैं वो हेड एलिमेंट है और हेड एलिमेंट भी ओपनिंग और क्लोजिंग या स्टार्ट और एंड टैग्स के साथ आएगा और विद इन दिस हेड टैग अब आप डिफाइन कर दें टाइटल. सो द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी डिफाइंड हियर. Then you can have a body and then you can have end of the body and then you can have HTML. This is the most simplified combination that I have presented it in this particular slide. HTML base element. इसको मैंने इनडायरेक्ट भी कवर किया था जब मैंने बात की थी इमेजेस की, फोटोग्राफ्स की. आज जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. The base tag specifies the base URL target for the relative URL in a page. It defines a default address or a default target for all links on a page. बात समझ में आई कि चलिए इसको थोड़ा सा पहले एग्जांपल देखते हैं और फिर मैं इसके बाद फिर दोबारा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं. Base is the attribute. It should have certain attributes और वो attributes क्या है कि URL है और वो URL जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और प्लस थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपका पेज जो है वो नेक्स्ट टैब में खुले या विद इन द टैब वो खुले. अब इस URL के अंदर आप you can easily find out कि what type of information you are putting it in a base. और ये इंफॉर्मेशन अगर आप देखें www.comsets.edu.pk/images तो मैंने प्रिसाइजली वही एग्जांपल पिक की है जो मैंने इमेजेस के अंदर आपको डेमोन्स्ट्रेट की थी. तो इसके एग्जांपल को देखने के बाद गो बैक टू द सेकंड बुलेट. इट डिफाइंस अ डिफॉल्ट एड्रेस और अ डिफॉल्ट टारगेट फॉर ऑल लिंक ऑन पेज. बात समझ में आई कि आपके पेज पे जितनी भी आपने लिंक्स डिफाइन किए हुए हैं उसके लिए जब व्हेनेवर द ब्राउजर विल गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक तो आपको याद है कि वो लिंक कैसे कन्वर्ट होता है. वो लिंक जो है वो पॉइंटर से कन्वर्ट हो जाता है हैंड के अंदर. अब अगर वो हैंड है तो उसको यूजर को अगर वो इंटरेस्ट है उसके अंदर तो यूजर उसको क्लिक करेगा और अगर जब उसको यूजर क्लिक करेगा तो उसके साथ अटैच्ड एक सब्सिक्वेंट पेज होना चाहिए, अटैच्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अटैच्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, व्हाटएवर यू हैव सपोजिंगली अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर लिंक. तो जितने भी लिंक आपने पेज के अंदर यूज किए हुए हैं आप ब्राउजर को बताते हैं कि इसका जो डिफॉल्ट बेस है यानी कि बेस के बाद आप बेस बता देते हैं और 20 के बेस के बाद जो रिमेनिंग है वो आप उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, लिंक के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. जिससे आप कहते हैं ना कि डिफॉल्ट फोल्डर कौन सा होता है जिस फोल्डर में आप करंटली काम कर रहे होते हैं. तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं भाई डिफॉल्ट फोल्डर जो है वो मेरा डी ड्राइव में पड़ा हुआ है तो वहां पर, और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फर्ज किया अगर मोनोग्राम हमने तलाश करना है फॉर कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वी नो डैट कि कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट की सब डोमेन है इमेजेस दैट कंटेन्स ऑल द मोनोग्राम्स एंड पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स. तो मोनोग्राम जो है वो उसी पर्टिकुलर फोल्डर में मिलेगा. तो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द बेस. HTML लिंक एलिमेंट, इसको मैं पहले ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. अब हम इस लिंक को कवर कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द सबसेट ऑफ द हेड एलिमेंट. सो द लिंक टैग डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स. अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, CSS की हम बात करेंगे. तो CSS जो है एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, एक एक्सटर्नल फाइल है. यू कैन टाइप इन, यू कैन क्रिएट एंड यू कैन प्रिपेयर अ फाइल दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर होल वेब पेज और मे बी ऑन होल वेब पोर्टल. और उसमें अगर किसी भी किस्म की चेंजेस करनी है तो आप उसे एक फाइल में चेंज करेंगे, सारे के सारे चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगी टू योर कंप्लीट पोर्टल और टू अ कंप्लीट पेज. So head link is equal to rel, related is equal to style sheet, type is equal to text oblique CSS
और रेफरेंस है इसका mystyle.css. CSS is a default data type of certain files that is a style facility और CSS से बनता है, अगर आप अपनी स्लाइड के बॉटम पे देखें, CSS means cascading style sheet. A cascading style sheet is a sheet जिसको के आप डिफाइन करते हैं और वही स्टाइल जो है आप अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. कैस्केडिंग का क्या मतलब है? आई विल कम बैक टू दिस इन फ्यू मिनट्स. ओके, स्टाइल एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब स्टाइल की बात कर सकते हैं. आपको याद होगा लास्ट में हमने बात की थी फॉन्ट्स की और कुछ बैकग्राउंड जो हमने डिफॉल्ट फॉर्मेट्स के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे. तो हमने कहा था कि वी शुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी शुड बी यूजिंग दी CSS स्टाइल शीट. तो आज हम उस CSS स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं. सो स्टाइल टैग इज डिफाइंड is used to define style information for HTML document. Inside the style document, we can specify HTML elements so that should be used by the browser to interpret our style that we have intended for our web page. So style type ये टेक्स्ट के साथ रिलेटेड है, तो हम इसको कह देते हैं कि टेक्स्ट CSS की ये CSS है जो टेक्स्ट पे अप्लाई होगा. और जनाब इसकी जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर दिया विच वी से इट शुड बी ए ब्लू. और पैराग्राफ का जो कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने कहा येलो. सो आप अगर देखें बॉडी, इसका मतलब है कि पूरी बॉडी जिसको कि हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. बॉडी का मतलब है कि आपके पेज की जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर आपने डिफाइन कर दिया. P इज ए पैराग्राफ, अब आपने पैराग्राफ का कलर डिफाइन कर दिया. इस तरीके से हमने स्टाइल को डिफाइन किया हेड डेटा एलिमेंट के अंदर या हेड स्टाइल एलिमेंट के अंदर. मेटा डेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको कहते हैं डेटा अबाउट डेटा. डेटा अबाउट डेटा क्या है? सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, कि ये जो डेटा है इससे कि किस किस्म का डेटा है, इसको कैसे इंटरप्रेट होना चाहिए. अभी आपको मैं दो एक एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगी. लेकिन सिंपल चीज ये है कि मेटा डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा या इन शॉर्ट डेटा अबाउट डेटा. So the meta tag provides the metadata about the HTML document. A metadata will not be displayed on the page क्योंकि ये basically a facilitation है for the browsers, for the search engine. So system use it for parsing your web page कि आपके web page पे क्या क्या information उनको मिल सकती है. So the meta elements are typically used to specify page description, keywords, author or document, last modified date and other related information. अब आप देखेंगे वो तमाम चीजें हैं जो कि उस डेटा के बारे में है जिसको आपने यूज किया है to define your page. The metadata can be used by the browsers how to display the contents or reload the page. Search engines use these keywords for searching certain contents. So meta tags are always specified in the head element. मैंने आपको बताया हेड एलिमेंट के अंदर अब हमने दो तीन चीजें देख ली हैं. हमने कहा कि हेड के अंदर हमने देख लिया कि हम टाइटल भी दे सकते हैं, हम बेस भी दे सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं और मेटा डेटा भी दे सकते हैं. एग्जाम्पल्स जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था. सो मेटा नेम्स हमने कहा कीवर्ड्स, सर्च इंजन को पता चल जाएगा भाई कीवर्ड्स हैं इसमें. अगर कीवर्ड्स हैं तो फिर आपको बड़ी आसानी से पता चलेगा कीवर्ड्स की एक लिस्ट भी होगी. और यहाँ पे हमने कंटेंट्स दिए हैं. कंटेंट किसके हैं? कीवर्ड्स के. यानी कि कीवर्ड्स हैं कौन कौन से? सो दीज आर HTML, CSS, XML, XHTML and JavaScript. तो इसका मतलब ये हुआ कि these are the words and these are the standard words and should be used as a keywords. तो आप सर्च इंजन को एक बात पता चल गई कि आपके पेज पे इंफॉर्मेशन जो है वो HTML के बारे में है, CSS के बारे में है, JavaScript के बारे में है, XML के बारे में है. ओके, सो बेसिकली
it defines the description of your web page. So you can define, it can define, मतलब आप सॉरी मेटाडेटा के अंदर आगे फर्दर 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. पहली बात यह है कि आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. पहले मैंने आपको बताया कि हमने एक डिफाइन करके दिखाया, कीवर्ड्स डिफाइन करके दिखाए कि कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा हम कह रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. डिस्क्रिप्शन, वट एवर डिस्क्रिप्शन वी वॉन्ट टू यूज. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल यूज की वो कह रहे हैं कि फ्री वेब ट्यूटोरियल ऑन HTML एंड CSS. ये आपको पता है कि मैंने कंटेंट्स कहाँ से पिक किए हैं इस लेक्चर के लिए. ये है जनाब w3schools.com, जहाँ पे ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. मैंने उन्हीं कंटेंट्स को यूज किया है स्लाइटली मॉडिफिकेशन के साथ. सो यू कैन डिफाइन द ऑथर ऑफ द पेज. जो भी ऑथर है, अगर आपने डिफाइन किया है कोई पेज, आपने कंटेंट्स डेवलप किए हैं, आप यहाँ पे अपना नाम स्पेसिफाई कर दीजिए. सो यू कैन रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड. ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आप ब्राउजर को दे रहे हैं, और उसके भी आप यूज करते हैं HTTP equivalent refresh is equal to content 30. हर 30 सेकेंड्स के बाद इस कंटेंट्स को रिफ्रेश कर दें. और लास्ट में आप स्क्रिप्ट भी बता सकते हैं. स्क्रिप्ट क्या चीज होती है? बेसिकली स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट सच एज जावास्क्रिप्ट. होता यह है कि व्हेनेवर यू डाउनलोड अ पेज फ्रॉम द सर्वर, from the web server, the page is downloaded onto your machine, onto your client machine. Now that page contains a lot of information. That page contains the information about your web server, how to display the information, how you can use the information. Similarly, it also provides the information to the browser कि in order to carry out or in order to display certain information, you will be required to execute a script. और that script should have been installed on your local client machine. तो अगर आपके कुछ वेब पेज पे आप जावा कंट्रोल्स यूज कर रहे हैं, जावा का स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो कंट्रोल और वो स्क्रिप्ट्स जो हैं आपके लोकल क्लाइंट्स के ऊपर, लोकल मशीन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो डिसेबल्ड होंगे और वो ब्राउजर जो है विल नॉट बी एबल टू यूज दोज स्क्रिप्ट्स unless until those scripts are installed and present in the client machine. और यहाँ पर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं ब्राउजर को कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर ये स्क्रिप्ट और ये इंफॉर्मेशन आपको ये फैसिलिटी चाहिए होगी in order to properly or correctly display the web page on the client machine. Okay? The script element will be explained in the later chapter, maybe जब हम जाएंगे जावा स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे या किसी और अभी मैंने आपसे कहा ना कुछ और टेक्नोलॉजीज भी कवर करूंगा, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स भी दिखाऊंगा. यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्किप किए हैं स्क्रिप्ट्स क्योंकि ये अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज कर सकती है इंफॉर्मेशन. ओके, सो वी कैन रिव्यू क्विकली कि what we have covered in the head data head tag elements. और हमने इसके अंदर कवर किया टाइटल्स के अंदर जो कि डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है, बेस जो है वो उसके डिफॉल्ट फोल्डर को डिफाइन करता है, जहाँ पे कि रेजोल्यूशन होगी, जहाँ पे कि एड्रेसेस पड़े होंगे, जहाँ पे कि लिंक जो है उसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इस फोल्डर का बेस एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है बेस एलिमेंट. लिंक जो है हम पहले भी यूज कर चुके हैं. इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्स. मेटा मैंने आपको बताया इट्स अ डेटा अबाउट डेटा जो कि फैसिलिटेट करता है ब्राउजर को टू इंटरप्रेट द डेटा. स्क्रिप्ट जो है वो बताता है कि क्लाइंट साइड के ऊपर आपको क्या फैसिलिटेशन चाहिए, और स्टाइल जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ ओवर डॉक्यूमेंट. और मैंने आपको बताया कि अगर हम फॉर्मेटिंग के लिए CSS यूज करेंगे तो इट वुड बी वेरी यूजफुल. तो हम आगे आ चलते हैं, हम CSS की भी बात करते हैं फिर. So depreciated tags and attributes. HTML4
Several formatting tags and attributes were used to style the document. ये वो बात है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि हम फॉन्ट और सेंटर और कलर और बीजी कलर, इसकी बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी, लेकिन हमने साथ साथ ये भी आपको बताया कि ये चीज़ें अब ऑब्सोलीट हो गई हैं इसको यूज़ करने की बजाय, क्योंकि बहुत से द नेक्स्ट वर्जन्स जो कमिंग वर्जन्स हैं लाइक HTML4, HTML5 या एडवांस वर्जन्स जो हैं, दे डू नॉट सपोर्ट दिस फॉर्मेट्स. द प्रॉपर वे इज दैट वी शुड यूज CSS. और मैंने आपको बताया कि CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS. ये है क्या, कैस्केडिंग का मतलब क्या और कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या? आप देखें कि ये एक बड़े मजे की एक पिक्चर सी है जिसके अंदर कैस्केडिंग को डिफाइन किया हुआ है. कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसमें के पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर कैस्केड कहते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट सिक्वेंशियली आप एक के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करते चले जाते हैं. इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल. यानी कि आप एक चीज़ डिफाइन, पहले आप हेड डिफाइन कर दें, फिर आप पैराग्राफ डिफाइन कर दें, या आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 डिफाइन करें, फिर बॉडी का जो है आप कोई इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, या आपने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर आप एक और टेबल बना सकते हैं, उस टेबल के अंदर एक और टेबल बना सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कैस्केडिंग स्टाइल शीट. और इसमें आप हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जो है कवर कर सकते हैं रिगार्डिंग द लेआउट ऑफ योर पेज. तो इसलिए ये थोड़ी सी पिक्चर मुझे मजे की लगी थी W3 स्कूल पे, जिसको मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया. CSS was introduced together with HTML4 to provide better way to style HTML elements. It removes the overhead of formatting every page, which was very time consuming. हर पेज को फॉर्मेट करना पड़ता था. फिर हमने क्या किया कि इससे जान छुड़ाई, और इसके हमने अभी अगली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब हम हर पैराग्राफ को भी डिफाइन कर सकते हैं, हर पेज को भी डिफाइन कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे एक पेज को भी डिफाइन कर सकते हैं, पूरे के पूरे पोर्टल को भी डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस CSS. तो ये बड़ी पावरफुल और बड़े मज़े की चीज़ है. नीचे भी मेरा ख्याल था कि मैं CSS के ऊपर पूरा एक लेक्चर दूं, लेकिन ये बड़ा बोरिंग सा हो जाता, और मैंने सोचा कि यू शुड कवर इट इन योर लैब्स. So using styles in HTML, however, जो basic CSS की चीज़ें हैं, quickly मैं अगली 3-4 स्लाइड्स के अंदर I will cover those basic concepts, ताकि आपको पता चल जाए कि it's not difficult at all. So how to add style information inside the head section? There are 3 ways through which you can put in the style information. Number 1, we can use inline using the style attribute in HTML. Number 1, combination, कौन सा? Inline using attributes. Number 2, internal using style elements. Number 3, external using CSS file. 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं. अब ये तीनों कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ यूज होंगे, मैं इनको तीनों की आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना है कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो विद इन द लाइन होते हैं. एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक, या एक पूरे ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होते हैं. ब्लॉक की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में. और जो एक्सटर्नल है और फाइल है वो आप पूरे के पूरे पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं. सो हमने CSS 3 एलिमेंट्स की बात की, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल. इनलाइन का यूज करता है एट्रीब्यूट्स को, इंटरनल यूज करता है स्टाइल एलिमेंट्स को, और एक्सटर्नल यूज करता है आपकी एक्सटर्नल फाइल को. The preferred way to add CSS to HTML is to put CSS syntax in a separate CSS file, and that is usually adopted by the web designer. जो बहुत एडवांस लेवल का जो काम करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, दे प्रेफर कि वो एक फाइल ही बना लें. लेकिन मैं आपको तीनों 1 by 1 करके दिखाता हूँ. सबसे पहले नंबर 1 है इनलाइन स्टाइल. An inline style can be used if a unique style is to be applied on a single occurrence of the element.
मतलब एक एक लाइन के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, या विद इन लाइन के अंदर भी अगर आप यूज कर रहे हैं, फर्ज किया कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट का आप कुछ और डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को आप कुछ और डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है इन वाइन स्टाइल, मैंने आपको पहले बताया कि वो एट्रीब्यूट्स के साथ यूज होता है, और इसकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल चेंज द टेक्स्ट कलर एंड द लेफ्ट मार्जिन ऑफ ए पैराग्राफ। दो चीजें हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, हमें पता है। स्टाइल इज इक्वल टू, अब हम एक चीज दे रहे हैं स्टाइल के अंदर, कलर कॉलन ब्लू, और ये सेमी कॉलन से सेपरेट करके आप ऐड करते जाते हैं जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, मल्टीपल। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अगली एग्जांपल के अंदर मैं फॉन्ट को भी ऐड कर लूँगा, और फिर मैं और चीज़ों को भी ऐड कर लूँगा। तो हम एक से ज़्यादा अगर एट्रीब्यूट असाइन करते हैं ना स्टाइल को, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सेमी कॉलन से। सो कलर कोलन ब्लू, कोलन क्या डिफाइन करता है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है टू बी असाइन टू द लेफ्ट साइड, यानी कि ब्लू शुड बी असाइन टू द कलर। सेमी कॉलन, अब नया एट्रीब्यूट आ गया। मार्जिन लेफ्ट कोलन 20 पिक्सल, 20 पिक्सल शुड बी असाइन टू द मार्जिन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पे जो आपने जो मार्जिन छोड़ना है दैट शुड बी इक्वल टू 20 पिक्सल्स। और दिस इज अ पैराग्राफ, अब आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर। एट्रीब्यूट ऑफ इस दफा जो स्टाइल एट्रीब्यूट है हम यूज करने जा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया क्या है, बैकग्राउंड कलर। आप देखिए कि बैकग्राउंड कलर जो है हम असाइन करने जा रहे हैं किसे, अब पैराग्राफ को नहीं असाइन कर रहे, पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर असाइन करने जा रहे हैं। सो बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कोलन, कलर कौन सा भाई, येलो। उसके बाद हमने कहा हेडिंग, हेडिंग का साइज हमने पसंद किया H2, याद है ना, H1 H2 अप टू H6, तो H2 हमने साइज पसंद किया। स्टाइल इज इक्वल टू, अब इसको क्या असाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, और हेडिंग का टेक्स्ट क्या है, दिस इज अ हेडिंग। अब दिस इज अ हेडिंग जो है ये कैसे डिक्लेयर होगा जनाब, इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो रेड होगा। ठीक है, ये भी हम आपको एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा अभी। फिर आ गया पैराग्राफ, हेडिंग डिफाइन कर दी, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, बॉडी का पूरा कलर हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन जब हम नेक्स्ट चीज डिफाइन करते हैं तो वो ओवरराइड कर देता है प्रीवियस वाले को, यानी कि बॉडी का कलर येलो है, लेकिन जब हमने उसमें हेडिंग यूज की तो येलो कलर के अंदर बैकग्राउंड रेड कलर नजर आएगा, हेडिंग को असाइन हुआ हुआ। और अगर हमने पैराग्राफ को कलर असाइन किया है ग्रीन, तो बॉडी जो पूरी ग्रे नजर आ रही हो, सॉरी येलो आ रही होगी, हेडिंग उसकी रेड होगी, और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन आ रहा होगा। The background color property overrides the previously defined background color property। आप ये कह सकते हैं ना भाई, बॉडी को तो बैकग्राउंड कलर दे दिया, अब हेडिंग भी तो बॉडी में आ रही है। नहीं, हमने हेडिंग को जब रीडिफाइन किया तो उसने बॉडी के ऊपर बाकी जगह तो उसको अप्लाई रहने दिया येलो को, लेकिन हेडिंग का बैकग्राउंड जो है उसने चेंज कर दिया। फिर जब हमने पैराग्राफ को कलर असाइन किया बैकग्राउंड ग्रीन, तो बॉडी का कलर भी वही रहा, हेडिंग का कलर भी वही रहा, लेकिन जो आपकी पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ के अंदर लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ये मतलब है जो नीचे मैंने कैप्शन दिया है, द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ओवरराइड्स द प्रीवियसली डिफाइंड बैकग्राउंड कलर इन द ब्लॉक। अब मैंने कहा था फॉन्ट की भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसमें हम तीनों चीजें इकट्ठी करेंगे, फॉन्ट फैमिली कह देते हैं इसे, जिसमें कलर भी है, फॉन्ट साइज भी है, दोनों चीजें, तीन नहीं है, दो चीजें हैं भाई। अब हम यहाँ पे हेडिंग को दे रहे हैं फॉन्ट फैमिली इज वर्दाना, और हेडिंग है ये जिसको हमने H1 कहा है। अभी हमने इसको कोई कलर नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट कलर में जाएगा, और डिफॉल्ट में आपको पता है कि ब्लैक होता है। और पैराग्राफ के अंदर हमने कहा कि एरियल यूज करेंगे, कलर उसका रेड होगा, पिक्सल साइज उसकी 20 होगी, और ये एक पैराग्राफ इस तरह लिखेंगे उसे। वही बात है कि फॉन्ट फैमिली कलर एंड फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज ओवरराइड्स द प्रीवियसली डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। अगर इससे पहले बॉडी के लिए कोई एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं तो ये उसको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को भूल जाएगा, बल्कि
पर सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए जो नई डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है उसको यूज करते हुए आपको वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। और फाइनली यहाँ पर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज किया हुआ है। अब हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने कलर भी कवर कर लिया, बैकग्राउंड भी कवर कर लिया और फॉन्ट भी कवर कर लिया और अलाइनमेंट जो है वो इसमें कवर हो गई कि H1 का स्टाइल जो है टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, कि आप उसको सेंटर कर सकते हैं, आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं, आप उसको राइट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू एन एग्जांपल जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी हुई है और ये है जनाब डेमो। इस डेमो में आप देखें ये बहुत डार्क हो गया लेकिन चलें कोई बात नहीं, इसमें नज़र आ रहा है कि ये बैकग्राउंड कलर इसमें ग्रे आ रहा है। अच्छा ये कैसे आ रहा है इसका, हम आपको याद है कि आई हैव गिवन यू द प्रोसीजर कि आप इसका सोर्स देख सकते हैं। तो जो हम इसके लिए सोर्स मैंने आपके लिए बनाया है जिसकी मदद से ये सारा डिस्प्ले कर रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक हो गया भाई। ओके, बैकग्राउंड कलर ग्रे, आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया है। HTML बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे। H2 हेडिंग है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है। बैकग्राउंड कलर देखें इसका रेड है, कंटेंट वही रहने दिया ब्लैक ही है, लेकिन बैकग्राउंड कलर हमने H2 स्टाइल जो यहाँ पर दिया था, दिस इज अ हेडिंग, इसको रेड कर दिया था। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन कर दिया था, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये ग्रीन कलर के अंदर ये पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर दोबारा हमने हेडिंग H1 डिफाइन की और इसका फॉन्ट जो है हमने वो रखा वर्दाना, और बाद में मैंने इसको नीचे चेंज किया था, ये जो हेडिंग है। अच्छा चलिए सीक्वेंस में चलते हैं। उसके बाद आ गया पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का जो कलर है वो हमने पसंद किया रेड और फॉन्ट का साइज दिया हमने 20। फिर H1 स्टाइल आ गया टेक्स्ट और हमने कहा कि जनाब ये जो हेडिंग होगी ये लेफ्ट लाइन होगी, और ये हेडिंग जो है जनाब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लाइन हो गई H1 हेडिंग, और सेंटर अलाइन सॉरी ये वाली नहीं है भाई, ये है ये वाली। यहाँ देखिए आप अगर एक मिनट देखना चाहते हैं तो ठीक, ये सेंटर वी अलाइंड, ये है सेंटर वी अलाइन। ठीक हो गया। इसको वापस जाते हैं, ये हमारा अच्छा तो ये आ गया भाई, ये आगे पीछे हो गई थोड़ी सी। लेट मी सी, हमारी विंडो को चाहे एक दफ़ा फिर खोल देते हैं, हमें कौन सी देर लगती है यहाँ से व्यू सोर्स, ये आ गया अभी वापस। ठीक, अच्छा हम यहाँ तक पहुँच गए थे और उसके बाद ये पैराग्राफ, फिर ये नॉर्मल आ गया पैराग्राफ विद डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स, फिर H1 हेडिंग आ गई हमारे पास, और फाइनली हमने ये पैराग्राफ जो लास्ट वन दिया उसका कलर हमने ब्लू पसंद किया और साइज उसका 20 पसंद किया। तो आप देखें कि ये आपको इसके साथ डिस्प्ले कर रहा है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए, विच आई एम श्योर यू विल डू, और आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल स्टाइल शीट। अभी जो मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे क्या था, इन लाइन। हमने देखा कि इन लाइन हम डिफाइन कर रहे हैं टुकड़ों के अंदर, बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया, हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर दिया, एक हेडिंग के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई किया, फिर हमने हेडिंग दूसरी हेडिंग के लिए दूसरा स्टाइल अप्लाई कर दिया, पहले H1 हेडिंग को एक स्टाइल दिया, थोड़ी देर के बाद चेंज करके H1 को दूसरा स्टाइल दे दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इफ वी जस्ट रियली नीड के पूरे पेज को हम एक स्टाइल देना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे इंटरनल स्टाइल शीट। लेकिन आपको याद है मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था व्हेन वी यूज एन इंटरनल स्टाइल शीट, अब हम एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या यूज करेंगे? यस, अब हम यूज करेंगे स्टाइल एलिमेंट यूज करेंगे इसके अंदर। और मैंने आपको बताया था कि स्टाइल एलिमेंट जो है वो किस सेक्शन में आता है? हेड सेक्शन में आता है। So an internal style sheet can be used if one single document has a unique style. पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे। हेडिंग 1 होगी तो एक ही जैसी होगी, हेडिंग 2 होगी तो एक ही जैसी होगी। Internal styles are defined in head section of an HTML page by using the style tag.
अब आप पहले हेड एलिमेंट लेंगे, हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल देंगे, उसके अंदर हमने कहा बॉडी। अब पूरे पेज की जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर आपने येलो कर दिया और पैराग्राफ का कलर जो है आपने कहा ब्लू हो गया। अनलेस अनटिल आप उसको ओवरराइट करते हैं, पैराग्राफ का कलर जो है वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ये अब आपका पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट डू आई हैव फॉर यू इन दिस डेमो। और ये अगर हमारा डेमो है तो हमने इस डेमो में व्यू सोर्स कर लेते हैं। ठीक हो गया भाई, दैट्स सफिशिएंट। बैकग्राउंड कलर इज ग्रे, हमने पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे डिफाइन कर दिया। हमने कहा जब भी H1 हेडिंग आएगी ना, उसका कलर जो होगा वो होगा रेड, और टेक्स्ट जो अलाइन होगा वो सेंटर होगा। और H2 हेडिंग जो है उसका कलर ब्लू होगा और वो लेफ्ट लाइन होगी। पैराग्राफ जो है ये मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसका साइज वाइज बड़े करके दिखाए हुए हैं, ताकि वो सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लूँ। नॉर्मली पैराग्राफ हेडिंग्स तो बड़ा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन जस्ट शो करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए। पैराग्राफ का कलर मैंने यहाँ पर येलो पसंद किया, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, और जनाब पिक्सल साइज जो है हमने इसका यहाँ पे 40 कर दिया। जब हमने इसको डिफाइन कर दिया बॉडी के अंदर, H1 को डिफाइन कर दिया, H2 को डिफाइन कर दिया, पैराग्राफ को डिफाइन कर दिया, देन वी क्लोज डाउन द स्टाइल। अब ये स्टाइल हमारा क्लोज डाउन हो गया, अब इसके छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। और अब हमने जनाब इसको स्टाइल शीट को हेडर के अंदर बंद कर दिया। अब हम यूज कर रहे हैं H1 विदाउट एनी फॉन्ट और विदाउट एनी डेफिनेशन। जब हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं तो फिर अब इसके ऊपर वही अप्लाई हो रहा है H1 हेडिंग पे जो H1 का हमने पसंद किया था, H2 हेडिंग जो हमने H2 के लिए पसंद की थी, और पैराग्राफ के लिए जो हमने पैराग्राफ के लिए कॉम्बिनेशन पसंद किया। ओके, तो आपने देखा कि कन्वीनियंस बढ़ती जा रही है। पहले हम बार बार हर उसके लिए लेकर आ रहे हैं फॉर्मेट, और फिर हमें थोड़ी सा समझ आ गई कि नहीं इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं होती, पूरे पेज के लिए कर लेते हैं। और जनाब इसी आइडिया को वी विल एक्सटेंड इट फर्दर, और हम अब लेकर जाएंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ऊपर जाना चाहते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है कि एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज एन आइडियल व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड टू मैनी पेजेस। आपके पोर्टल के एक से ज्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि सारे पेजेस का एक जैसा रख रखाव होना चाहिए, एक जैसा स्टाइल होना चाहिए, तो आप एक दफा मेहनत करके डिफाइन कर दें और उसको जनाब आप अटैच कर दें अपने पोर्टल के साथ, और फिर आप जब भी कोई चेंज करना होगा उस फाइल में जाके यू विल मेक द नेसेसरी चेंजेस, एंड दोज चेंजेस विल बी अप्लाइड एंड अडॉप्टेड बाय द सिस्टम, और ब्राउजर विल बी यूजिंग दैट एक्सटर्नल फाइल टू डिकोड द स्टाइल दैट यू हैव कोडेड इन द फाइल। ओके, और ये जो फाइल है अब आप देखें ये भी आप हेडर के अंदर मेंशन कर रहे हैं, और अब क्योंकि आपने स्टाइल शीट दी है, एक एक्सटर्नल सोर्स दे दिया है, तो रिमेंबर फॉर द एक्सटर्नल सोर्स वी यूज द एड्रेस एलिमेंट, और यहाँ पर एड्रेस एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं लिंक और REL, उसके साथ हमने फाइल का नाम दे दिया, उसकी हमने टाइप बता दी, और फिर हमने उसका एग्जैक्ट रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया इन दी हेडर। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाई, that I picked it up, which is a sample of CSS file by default, या जो उसकी होनी चाहिए एक्सटेंशन वो .css होनी चाहिए। तो इट्स myfile.css जिसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉडी जो है उसका फॉन्ट डिफाइन कर दिया, बॉडी का फॉन्ट एरियल होना चाहिए, हेडिंग 1 जो है उसका बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये एक इंटरप्रिटेशन है जो आप यूज कर सकते हैं, अगर CSS का मौका मिला तो मैं आप इसकी बजाय ना कलर यूज कर लें, ये भी बड़ा सिंपल होता है, आसान होता है। मुझे नेक्स्ट किसी उसमें किसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि ये नंबर कैसे आते हैं, C का क्या मतलब है और ये नंबर कैसे आता है और इससे कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है।
बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, कलर इज इक्वल टू दिस वन, ये बॉर्डर का कलर है, टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये हेडिंग डिफाइन कर दी, ये हमने टेबल डिफाइन कर दिया, ये हमने टेबल के डेटा डिफाइन कर दिया। अभी मैंने टेबल आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन आप अज्यूम करेंगे ये आप सारी की सारी डेफिनेशंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है फॉर अ CSS फाइल। इसमें आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी, वन टाइम एफर्ट है ना, तो यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द डिफाइनिंग, और जितनी भी एफर्ट आपने वन टाइम करनी है वो इसके साथ कर लें। लेकिन वंस यू डू दैट देन यू कैन सेव इट एंड देन यू कैन अप्लाई इट टू द होल पोर्टल, टू ऑल द पेजेस ऑफ योर पोर्टल, एंड ऑल द पेजेस ऑफ योर पोर्टल विल बी यूजिंग दिस CSS फाइल। हमने देखा कि स्टाइल टैग्स जो है वो जनाब हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने उसमें आपको तीनों चीज़ें इन लाइन भी बताया। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इंटरनल, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एक्सटर्नल ऑल्सो। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट द लिंक, कि हम अगर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स को हमने लिंक जो है वो कैसे करना है। HTML टेबल्स आ गए। टेबल जो है बड़े मज़े की चीज़ है, और ये यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी होता है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे मिसयूज़ होता है। बट टेबल हम बात करते हैं कि जब कोई टेबुलर फॉर्म के अंदर, इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट सर्टेन डेटा इन द टेबुलर फॉर्म, देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टेबल। So we can produce different styles of table provided we provide the details of the table. So ये एक सैम्पल टेबल है। ये टेबल जो है जनाब हमने टेबल टैग के साथ डेटा एलिमेंट, टेबल एलिमेंट के साथ वी हैव डिफाइंड इट। सो टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। टेबल इज डिवाइडेड इन 2 रोज, जिसको हम डिफाइन करते हैं TR, टेबल रो। उसके बाद वी प्रोवाइड अ रो के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं डेटा, जिसको हम कहते हैं TD, और TD का मतलब है टेबल डेटा, यानी कि रो बाय रो हमें डेटा प्रोवाइड करना होता है। Then we can also provide the heading of the table, और उसके भी हम यूज करते हैं TH, table heading। So हम ये सारी चीजें कंबाइन कर सकते हैं। फिर हम प्रोवाइड कर सकते हैं TD elements are the data containers in the table, यानी कि वो अगर हमने ऊपर मैंने आपको बताया ना, रो के अंदर अगर हमने रो के एलिमेंट्स देने तो हम TD को यूज कर सकते हैं। Okay, the width of the table can also be defined using CSS। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, टेबल स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे विड्थ डिफाइन की विच इज 300 पिक्सल्स। यूजुअली 300 पिक्सल्स जो होती हैं वो आपका एक सिग्निफिकेंट एरिया कवर करता है। और ये जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल थी ये उसी का कोड है। TR डिफाइंस अ रो नंबर 1, और देन TD इज द डेटा फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट जिल, दूसरा स्मिथ, तीसरा 50, फिर सेकंड रो डिफाइन की, सेकंड रो का डेटा डिफाइन किया। ठीक, ये 2 रोज यहाँ पर डिफाइन हो गई। हेडिंग भी डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर हमने हेडिंग भी उसी तरीके से डिफाइन की कि टेबल हेडिंग्स आर आल्सो डिफाइंड। मैंने आपको बताया था TH की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्टाइल देख रहे हैं, टेबल स्टाइल के अंदर आपने रो 1 डिफाइन की, फिर आपने रो 2 डिफाइन की। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हाँ टेबल हेडिंग, यस टेबल हेडिंग भी आ गई। आपने रो हेडिंग आप चाहते हैं कि एक रो की फॉर्म में आए, ठीक है ना, तो उसके लिए आपने TH डिफाइन किया और आपने कहा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पॉइंट्स। उसके बाद आपने रो का डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया। और अगर आप चाहें तो टेबल हेडिंग को अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको अलाइन किया है टुवर्ड्स लेफ्ट। बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन है, मैं प्रीवियस चाहता हूँ इसी इसकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पॉइंट्स, ये हमने हेडिंग के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक, और डेटा अलाइनमेंट जो है वो आप देखें कि जो सेल है उसका लेफ्ट अलाइंड है डेटा, और ये आपने देखा इस स्लाइड के अंदर टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। HTML table with cell padding। Cell padding क्या है? It specifies the space between the cell contents and its border। ये आपको प्रोवाइड कर दें अगर तो आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर आपके तमाम सेल जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, कोलैप्स नहीं करते एक दूसरे के साथ मिलकर। तो लिहाजा इससे गुड प्रैक्टिस कि आप वो प्रिसाइजली हर सेल के दरमियान जो पैडिंग है वो आप उसको डिफाइन कर दें। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ पैडिंग देन द टेबल सेल विल बी डिस्प्लेड विदाउट एनी पैडिंग। बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे। द सेट ऑफ द पैडिंग यूज CSS पैडिंग प्रॉपर्टी।
क्वालिटी, और इसको आप कितने 15 पिक्सल फॉर एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। फिर सेल की स्पेसिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं, दो सेल्स के दरमियान में डिफॉल्ट स्पेस कितना होना चाहिए। और यहाँ मैंने आपके लिए एक टेबल बनाने की कोशिश की थी और जिसके बाद फिर बनाया है बाय द वे मैंने, दिस इज योर टेबल। और जनाब ये टेबल मैंने कैसे बनाया है, ये इसका आप व्यू करें सोर्स, ठीक हो गया। हमने जनाब हेड के अंदर डिफाइन किया स्टाइल, ताकि हम चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर जब भी टेबल आए तो उसका क्या स्टाइल है। अभी हमने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर डिफाइन किया, डेटा हम उसका बाद में नीचे प्रोवाइड करेंगे। तो हमने बॉर्डर बताया 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, देखें सॉलिड ब्लैक 1 पिक्सल, और बॉर्डर कोलैप्स, ठीक, उसको हमने कोलैप्स फॉर्म में रखा हुआ है। बॉर्डर 1 एक भी डायरेक्ट दूसरा शुरू हो जाता है। फिर टेबल हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शंस हम दे रहे हैं यहाँ पर। पैडिंग हम उसमें देना चाहते हैं 5 पिक्सल्स की, और अलाइनमेंट हम उसकी टेबल हेडिंग की करना चाहते हैं जनाब लेफ्ट। उसके बाद अब यहाँ पे हमने स्टाइल डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने डेटा डिफाइन कर दिया। रो बाय रो हम डिफाइन कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया। ये कोई टाइम टेबल बनाने की कोशिश की थी, ये उसके इंफॉर्मेशन है। जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया ही देना था मैंने इसका। ओके, so we have seen the table description, we have seen the table heading that defines the heading or the header cell in the table. Then we can define a table row, then we can put the data in each table row using TD. We can also use caption, I have skipped that. इसके अलावा कॉलम्स हैं, आप कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग भी आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट ऐसे मैंने कहा कि मैंने आपको पूरा इस HTML का एक टेस्ट देना है, तो कुछ चीज़ों को मैंने स्किप किया है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं इन योर लैब सेशन, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स दैट आर प्रोवाइडेड w3school.com. HTML list. हमें अक्सर we are required to put certain list, so we can put two types of list, an ordered list and an unordered list. Ordered list क्या होती है? That contains an order number 1 2 3 4 5 6 up to n तक आप जो भी नंबर यूज करना चाहें वो कहलाती है ordered list. और अगर order मैटर नहीं करता तो then you can put a list which is called an unordered list, or we may use, or by default it uses the bullets for the unordered list. Okay. फिर HTML unordered list को अगर आपने डिफाइन करना है तो सिंपली आप कह सकते हैं unordered UL stands for unordered list. आप स्टार्ट करेंगे, इसको एंड करेंगे, विद इन द ऑर्डर यू कैन प्रोवाइड द लिस्ट। लिस्ट में आपने डिफाइन किया कॉफ़ी एंड मिल्क, और जनाब इसकी टी कोडिंग जो है वो आपको नीचे नज़र आ रही है कि आप ब्राउज़र इसको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो ये बुलेट के साथ कॉफ़ी और मिल्क को डिफाइन करेगा। और अगर इसको ऑर्डर करते हैं तो फिर ये ऑर्डर फॉर्म के अंदर आपको कैसे नज़र आएगा, ये आप देख लें कि 1 and 2 के फॉर्म में नज़र आ जाएगा। बाकी मैं ज़रा स्किप कर रहा हूँ। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नॉर्मली जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के साथ साथ हमें डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। सो वी कैन यूज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो हम उसको यूज कर सकते हैं DT के साथ, दैट इज डिफाइंड टर्म्स एंड नेम्स, एंड वी कैन ऑल्सो यूज DD जो कि डिस्क्रिप्शन डिफाइंड डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम हर नेम को हम डिफाइंड डिस्क्रिप्शन और डिफाइंड लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो पहले आपने किया जनाब यूज डिफाइंड लिस्ट। डिफाइंड लिस्ट के अंदर जनाब आपने डिफाइन किया DT जो कि आपका है डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद सॉरी DT वो डिफाइन
लेट मी सी डिफाइन डी टी। ओके, हम अभी देख के मैं भी आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा ज़हन से निकल गया क्या चीज़ है ये। और डी डी जो है इट्स डिस्क्रिप्शन है, और हाँ इससे यहाँ से देखते हैं इस हाउ इट इज वी कैन जस्ट प्रोवाइड दिस कॉफ़ी, क्योंकि अब हम आप यहाँ पे कोई डॉट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, और इसके साथ हम डिफाइंड डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। और ये देखें हाइफन यहाँ पर आ गया, और ये ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क इज़ अ वाइट कोल्ड ड्रिंक। ओके, अभी लास्ट में इसको सम अप करेंगे तो मैं जो कन्फ्यूजन आया उसको मैं भी ठीक कर दूंगा। यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा जी क्या कन्फ्यूजन। डी टी डिफाइंस अ टर्म नेम इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। समझ में आई बात। ये आपका जो टर्म नेम है उसको डिफाइन कर सकते हैं इन दी लिस्ट, और बाकी तो ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लिस्ट है। डीएल मैंने आपको बताया कि डिफाइंस आर डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो आपने बनानी है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। और डीडी डिस्क्राइब्स अ डिस्क्रिप्शन अ टर्म नेम इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप नेम यूज कर सकते हैं डीटी एंड डीडी। ब्लॉक, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ब्लॉक का। मैं अभी थोड़ी देर में लेआउट के ऊपर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया था कि ब्लॉक्स क्या है, जो हम डिफरेंट सेक्शंस यूज करते हैं। पैराग्राफ भी एक ब्लॉक हो सकता है, फिर हम टेबल जो है वो भी एक ब्लॉक हो सकता है, और HTML एलिमेंट कैन ग्रुप टुगेदर, डिवाइड एंड स्पैन। हम एक चीज को सेपरेट करना चाहते हैं, वन पोर्शन ऑफ द पेज वी वांट टू पुट इट सेपरेट एज ए वन डिवीजन और एज ए वन ब्लॉक। तो व्हाट वी कैन यूज द div एलिमेंट एंड स्पैन एलिमेंट टू डिफाइन कि जो चीज हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसके लिए है। थोड़ी देर में अभी आपको नेक्स्ट उससे समझ में आ जाएगा। मोस्ट HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज ए ब्लॉक लेवल, यानी कि जो आप एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट उस ब्लॉक के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। और अगर आप विद इन द ब्लॉक जाएंगे देन यू हैव टू डिफाइंड एज एन इनलाइन एलिमेंट्स। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि इनलाइन एलिमेंट्स में आपने देखा एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पूरे ब्लॉक पे नहीं इंप्लीमेंट होते, बल्कि विद इन द पैराग्राफ वो विद इन द लाइन एट्रीब्यूट्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। जबकि इंटरनल स्टाइल जो है पूरे ब्लॉक के ऊपर मींस पूरे पेज के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा होता है। समझ में आई बात। तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं पूरे ब्लॉक के लिए, और वो स्टार्ट और एंड होते हैं, और न्यू विद द डिस्प्ले, और जो ब्राउजर जो है उसकी मदद से एक ब्लॉक की डेफिनेशन को पिकअप करता है। एग्जांपल्स आर H1P, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, टेबल्स, ये सारे के सारे जो हैं हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक्स के लिए। तो अगर ये यूज कर सकते हैं तो फिर स्पैन कहाँ पे यूज होता है या इनलाइन एलिमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं? दे आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। जब भी कोई ब्लॉक आएगा तो जैसे हेडिंग आती है आपकी H1, इससे पहले और इसके बाद एक ब्लैंक लाइन जो है वो ब्राउजर डिस्प्ले करता है। पैराग्राफ आता है, मैंने आपको बताया, उससे पहले उसके बाद एक लाइन आती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है, ये टेबल आता है। तो जब भी कोई ब्लॉक होता है उसको वो सेपरेट कर देता है रेस्ट ऑफ दी कंटेंट्स के साथ। यही वजह है मैंने आपसे कहा था ब्लॉक जो है वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, ब्लॉक जो है वो एक टेबल भी हो सकता है, ब्लॉक जो है एक हेडिंग भी हो सकती है। अगर आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल यूज की थी बैकग्राउंड की, वो इसलिए यूज की थी ताकि आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जब हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया था तो पूरे ब्लॉक का एक कलर चेंज हो गया था, याद है? सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा आसानी से। और जो विद इन द ब्लॉक है वो अब क्योंकि ब्लॉक है ही नहीं, वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज बोल्ड, आप बोल्ड यूज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सिर्फ जो दो एरिया दरमियान में इंक्लोज्ड है वो बोल्ड होगा। TD डिफाइन टेबल, आप एक सेल डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा डिफाइन कर रहे हैं, तीसरा डिफाइन कर रहे हैं, आप उसको इंडिविजुअली डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर A है, फिर इमेज है, और नॉर्मली इमेज जब आता है तो वो इमेज ऑटोमेटिकली ब्लॉक क्रिएट कर देता है, लेकिन व्हाइल यू आर एंटरिंग द डेटा आप उसको विद इन द लाइन भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते दे सकते हैं। Then we use HTML divide element, div element. The HTML div element is a block level element that can be used as a container for grouping the HTML elements. समझ में आई बात?
The div element has no special meaning except that it tells the browser to display a line break before and after the block. मकसद के सेपरेट करे, डिवाइड करे कंटेंट्स को, एक फर्स्ट कंटेंट को सेकंड कंटेंट्स से सेपरेट कर दे, डिवाइड कर दे, उसके बीच में एक एम्प्टी लाइन क्रिएट कर दे ताकि डिवीजन आ जाए, सेपरेशन आ जाए. ये मकसद है उसका. When used together with CSS, the div element can be used to set the style attribute to large block of contents. अब अगर स्टाइल के साथ यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, स्टाइल जो है पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा आपका. Another common use of the div element is the document layout. It replaces the old way of defining the layout using tables. जो पहले मैंने आपको बताया था ना कि टेबल, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेबल यूज भी होता है और मिस यूज भी होता है. हम क्या करते हैं, आसानी होती है, फर्ज के एक पेज डिफाइन करना है, व्हाट वी डू कि हम उस पेज का एक सेल डिफाइन कर देते हैं, एक पेज को एक 1 रो 1 कॉलम टेबल डिफाइन कर दिया. अब उसके अंदर जाके हमने एक और सेक्शन बना दिया, उसके अंदर हमने 3 कॉलम बना दिए, ठीक है, 1 रो 3 कॉलम बना दिया, उसके नीचे हमने एक बड़ा सा कॉलम बना दिया, वर्टिकल उसको अलाइन कर दिया लेफ्ट के ऊपर, राइट साइड पे जाके उसको अलाइन कर दिया. तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली किया हमने वी हैव प्रिपेयर्ड अ पेज लेआउट बाय मिस यूजिंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू अस एज ए टेबल टूल्स. तो हमें बेसिकली टेबल्स को यूज करना चाहिए फॉर द टेबुलेशन ऑफ द डेटा, नॉट द पेज लेआउट. तो फिर पेज लेआउट कैसे किया जाए? पेज लेआउट को यूज करने के लिए हमें हमेशा यूज करना चाहिए आपका div एंड span. तो span एलिमेंट की भी बात करें, जब हमने div की बात की है, span element is an inline element that can be used as a container for the text. The span element has no special meaning. When used together with CSS, the span element can set attributes to the part of the text within the block section. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि स्टाइल जो है पूरे ब्लॉक का नहीं, विद इन द ब्लॉक भी तो हो सकता है ना, कोई चीज आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं. अब आपने ब्लॉक के लिए तो एक डिफाइंड स्टाइल डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अगर विद इन द ब्लॉक भी आप एक छोटे से सेक्शन को, और आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने कहा कि जब आप डिफाइन करते हैं तो ओवरराइड हो जाता है प्रीवियस. तो विद इन दी ब्लॉक अगर आप कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द स्पैन, एंड दैट इज विद द स्पैन एलिमेंट दैट यू यूज विद द एट्रीब्यूट्स. तो फिर आपका वो एट्रीब्यूट्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा. ठीक, ग्रुपिंग हम जो करते हैं, जो कंटेंट्स जो हैं पेज पे डिफरेंट किस्म के बनाते हैं, वो हम div और span की मदद से बना सकते हैं. div defines a section in a document that is at a block level, और span defines section in a document in line. ओके, आई होप के फर्क समझ में आ गया होगा आपको. HTML लेआउट, अब थोड़ा सा लेआउट की तरफ चलते हैं. वेबसाइट लेआउट, हर पेज का एक लेआउट होता है. आप उस लेआउट को जिस तरह चाहें मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं. पहले हम लेआउट्स की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे टेम्पलेट्स की भी. वेब पेजेस लेआउट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड. कितना खूबसूरत लेआउट आप बनाते हैं, टाइटल कैसा बनाते हैं, उसके बाद पिक्चर कैसे सेट करते हैं, उसके बाद आप न्यूज़ इवेंट्स कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उस बैनर्स कैसे फिट कर रहे हैं. तो आप एक जनरल किस्म का एक टेम्पलेट सा बना रहे होते हैं जिसको हम लेआउट कहते हैं. यू कैन डिज़ाइन योर वेबसाइट लेआउट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये आपके शख्सियत को या आपके आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट वेबसाइट पुट देयर कंटेंट्स इन मल्टीपल कॉलम्स फॉर्मेटेड लाइक ए मैगजीन और न्यूज़पेपर. ठीक है ना, न्यूज़ वीक का आपने देखा होगा, टाइम देखा होगा, मैगजीन, बड़े स्टाइल के साथ वो अपना सिंपल बट स्टाइलिश तरीके से वो अपने मैगजीन को पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं. मल्टीपल कॉलम्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग div और टेबल. लेकिन मैंने आपको बताया कि टेबल यूज करना कोई एक अच्छी तरीकाकार नहीं है. आप div यूज करें फॉर योर लेआउट्स. CSS are used to position elements to create a background or colorful look of the pages.
अब हम div और CSS को कंबाइन करके डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं। ओके, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैंने बताया टेबल से भी कर सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि इट्स सिंपलेस्ट वे, और आप मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। हर कॉलम को आप एक ब्लॉक का कंसिडर कर सकते हैं, उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, रोज एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो भी अगर उसका बॉर्डर नहीं दिखाएंगे ना आप, अगर आप उसके बॉर्डर को कोलैप्स कर देंगे, उसका साइज 0 कर देंगे, और तो वो क्या होगा, वो आपका जस्ट एक पेज लेआउट बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस तरह करें। यहाँ पे हम तकरीबन वी आर गोइंग टू सम अप के लेआउट जो है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मजबूरी थी क्योंकि मैंने कोरिलेट करना था। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यूज़ किया है डिव को, और डिव को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर अगर आप देखें इसमें कमेंट के अंदर राइट साइड पे मैंने 1 2 3 4 यूज़ किया है। 1 2 3 4 मीन्स के 1 जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट मीन डिवीजन नंबर 1, फिर डिवीजन नंबर 2, फिर डिवीजन नंबर 3, फिर डिवीजन नंबर 4। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, बल्कि देयर आर 4 सेक्शंस दैट आर देयर दैट वी कुड प्रिपेयर, कि जो हमने पेज का एक लेआउट बनाया था। पहले हम इसकी डेमो देख लेते हैं, फिर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन इसी पेज की मदद से करना चाहूंगा। ये देखिए जी, ये एक पेज का लेआउट है। फर्ज किया कि आपकी वेबसाइट का पेज का लेआउट है। आप ऊपर यहाँ पे चाहें तो पिक्चर लगा दें। हमने लिखा CSC 330 ई-कॉमर्स। लेफ्ट साइड्स के ऊपर आपने देखा होगा ना, वेबसाइट्स के यहाँ पे किताबों के नाम होते हैं। मैंने आपके ट्रैक 2 की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मेंशन कर दी, HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक, ये टेक्नोलॉजीज मैंने फर्ज किए यहाँ मेंशन कर दी। कवर्स द बेसिक वेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रैक 2 क्या करता है। अब आप यहाँ पे चाहें तो HTML को भी एक्सप्लेन कर दें और चाहें तो यहाँ पे कुछ और कर दें। तो ये एक तरह से मैंने पेज का लेआउट बनाया, लॉजिकल उसके फिर नाम दिए। कलर जानबूझ के आई यूज्ड ब्राइट और कंट्रास्ट कलर यूज किए, और नीचे हमने कॉपीराइट दे दिया। ये चौथा सेक्शन, हाँ, दिस इज सेक्शन नंबर 1, दिस इज सेक्शन नंबर 1, ठीक, दिस इज सेक्शन नंबर 2, this is section number 3, and जनाब this is section number 4, copyright w3schools.com या vconcerts virtualconcerts.edu.pk। ये आपको 4 सेक्शंस नजर आ रहे हैं, और ये 4 सेक्शंस जो हैं, अगर मैं वापस जाऊं तो मैं एक दफा फिर आपको दिखाता हूं। ये पहला सेक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इट्स अ कंटेनर जिसके हमने साइज दिया 500। इसकी हमने डिव यहाँ पे डिफाइन की, स्टार्ट की डिव, और डिव के अंदर हमने डिव आईडी दे दी। उसके बाद हमने हेडर दे दिया, हेडर का बैकग्राउंड कवर दे दिया, फिर हमने उसका स्टाइल दे दिया H1 स्टाइल, मार्जिन बॉटम 0 कर दिया, CSS 330 ई-कॉमर्स जो वहाँ पे आपको नजर आ रहा है। चलिए यहाँ से हम सिर्फ ये देखते हैं, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन नंबर 1, यहां से स्टार्ट हो रही है डिवीजन नंबर 2, यहां से स्टार्ट हो रही है डिवीजन नंबर 3, और ये जनाब स्टार्ट हो रही है डिवीजन नंबर 4 जहां पे कॉपीराइट का जिक्र किया है। तो लेट्स गो बैक टुगेदर। मैं यहां से इसका ओपन कर लेता हूं सोर्स कोड। अब इसको इसके साथ रख के इंटरप्रेट करना चाहेंगे हम, ठीक है ना भाई, ताकि हम इसको डिकोड करना आसान हो जाए, हमें समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है भाई, जस्ट देखिए मेरे साथ आप यहाँ पर कि हमें कैसे नज़र आ रहा है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो आपका CSS 330 ई-कॉमर्स है, ये आपका डिवीजन नंबर 1 है, और ये जो डिवीजन नंबर 1 है ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये आपका जनाब डिवीजन नंबर 1 आ गया इधर। अगर आप इधर देखेंगे इसका जो साइज है वो हमने 500 पिक्सल दिया हुआ है, यहां से यहां तक का साइज है 500 पिक्सल। इसको हमने आईडी हेडर का नाम दिया है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन किया है, और फिर हमने H1 स्टाइल का मार्जिन जो है लेफ्ट साइड से मार्जिन 0 दिया, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके साथ टच कर रहा है।
फिर हमने यहाँ पर हेडर की इंफॉर्मेशन दे दी CSC 330 ई-कॉमर्स, और यहाँ पे जनाब ये डिवीजन नंबर 1 हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमने डिवीजन नंबर 2 शुरू किया, जो जनाब चलता जा रहा है और ये यहाँ पे आके एंड हुआ। इसमें हमने क्या किया, अगर आप देखें इसको, हमने कहा जनाब ID इज इक्वल टू मेन्यू, स्टाइल इज बैकग्राउंड कलर हमने दिया ये डिफरेंट, ये कलर दे दिया। हम इसकी जगह ऑरेंज भी लिख सकते थे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं आपको बाद में स्क्रिप्ट के साथ बताऊंगा कि ये कैसे नंबर कॉपरेट करता है। हाइट इसकी 200 कर दी हमने, ये देखें। उससे हमें ये फायदा हुआ कि ये एक बड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक कॉलम बना दिया हमने। वो कैसे बनाया कि हमने इसकी हाइट, ऊपर हमने हाइट नहीं दी थी हमने, ठीक है ना, ऊपर हमने सिर्फ विड्थ दी थी, ये यहाँ से यहाँ तक कि विड्थ कितनी है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको हाइट दे दी। फिर जनाब जब हमने इसको हाइट दे दी तो अब यहाँ पर फिर इसके बाद हमने इसको डेटा दिया, और मजे की बात यह है कि इसकी विड्थ 100 रखी, इसकी हाइट 500 थी, तो इस सेकंड डिवीजन की विड्थ हमने 100 रखी, यानी कि ये 1/5 है, ऊपर वाले का 1/5 है, क्योंकि इसकी विड्थ हमने 100 रखी। हाइट हमने इसकी 200 रख दी, इसको इसका मतलब 2 बनेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। और जनाब इसको हमने कहा कि फ्लोट लेफ्ट, और हमने इसको कहा कि इसको जनाब आप लेफ्ट साइड के ऊपर फ्लोट करें, क्योंकि हमें पता है कि CSS जो है इसको खुद अलाइन कर देगा। फिर हमने इसका डेटा प्रोवाइड किया, और डेटा हमने इसका क्या प्रोवाइड किया, बोल्ड के अंदर हमने दिया जनाब, ये बोल्ड के अंदर हमने दे दिया ट्रैक 2, इट्स बोल्ड, देन ब्रेक, ब्रेक का मतलब है न्यू लाइन, फिर हमने दिया HTML, ये बोल्ड में नहीं है, ब्रेक किया CSS, ब्रेक किया XML, ब्रेक किया जावास्क्रिप्ट, ब्रेक किया PHP। तो ये आप देखें कि ये चीजें जो है यहाँ पर आ रही हैं। फिर हमने डिफाइन की डिवीजन नंबर 3। डिवीजन नंबर 3 ये है कवर्स बेसिक वेबसाइट टेक्नोलॉजी, ये डिवीजन नंबर 3 है, जो कि डेफिनेशन, यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गई सेकंड की जो यहाँ से शुरू हुई थी। ये जनाब डिवीजन है 3rd। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर पिक कर दिया पहले, फिर इसकी हाइट हमने 200 रखी ताकि ये इसकी हाइट के साथ इसकी हाइट जो है ना मैच कर जाए। विड्थ इसकी 400 रखी, अब ये ऑटोमेटिकली 400 विड्थ रखने से 100 इसकी रखी थी, 400 इसकी रखी थी, इसकी विड्थ थी 500, तो ये खुद ब खुद फिट हो गया इसके साथ प्रिसाइजली। और जनाब हमने इसको 400 को लेफ्ट अलाइन करवेंगे, फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट के ऊपर फ्लोट करें जब तक ये एडजस्ट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिसाइजली एडजस्ट हो गया। हाइट 200 थी तो ये दोनों एडजस्ट हो गए, ठीक। और इसकी वेट 400 थी, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए, मैं इसको नीचे ले जाता हूं, आई ट्राई टू ब्रिंग इट अगेन। यहाँ पे आप देखें कि ये जो थी 500 थी हाइट पूरी, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, सॉरी यहां तक कितनी थी हाइट, हमने दी 200। यहां से यहां तक भी हमने 200 दी, तो ये लाइन हो गया। ये था 100, यहां से यहां तक 100 था, यहां से लेके इधर तक 400, और हमने इसको लेफ्ट फ्लोट कर दिया था, इसको भी लेफ्ट किया था, ये लेफ्ट पे जाके इधर फिट हो गया, ये लेफ्ट पे आके इधर फिट हो गया। तो जनाब ये हमारा लेआउट बन गया। और फिर डिवीजन नंबर 5 है, डिवीजन नंबर 5 को हम जनाब विड्थ देंगे 500, और कहाँ गया अभी हमारा पेज, लेट्स ट्राई टू रिकवर ओवर पेज। ओके, डिवीजन अब 5वीं, अब इसकी बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक डिवीजन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ, और फिर ये बाकी की डिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी। फुटर है, इसका हमने नाम रखा फुटर। स्टाइल बैकग्राउंड कलर हमने इसको असाइन कर दिया, और जनाब ये हमने कलर वो ही असाइन किया, इससे थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस वन से। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया इसका, ठीक है। और बाकी जो पूरा है कॉपीराइट जो उसका टेक्स्ट आ गया, जिसको हमने अलाइन सेंटर कर दिया। और क्या दिया हमने इसके अंदर, ये हमने सारा टेक्स्ट इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया इसके। और कलर क्लियर दिस, तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इसके बाद आया था, तो हमने यहाँ पर इसका कोई साइज जो है वो हमने मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये इसने साइज जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से
पिक कर लिया है, आई गेस, यस ऐसे ही है शायद। ओके, तो आप देखें कि हमने पूरा एक लेआउट जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है यूजिंग दिस डिवीजन। ठीक, यूजफुल टिप्स फॉर पेज लेआउट, इसमें जो सबसे ज्यादा यूजफुल टिप है कि आप जनाब, ओ सॉरी गो बैक, मैं समझ रहा हूं मैं उसी स्क्रीन मोड में हूं, सो आई एम बैक अगेन। ओके, now the most useful tips, बाकी आप इसको just go through it. The most useful tips are कि you should use Google that provides the free website templates. बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अच्छे templates वहाँ से मिल जाते हैं और वो आप use कर सकते हैं for which are pre-built website templates, और उन layouts को use करते हुए आप अपनी website को customize कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाएंगे फॉर्म्स एंड इनपुट। मैं आई क्विकली गो थ्रू इट बिकॉज हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। फॉर्म्स का क्या है, दे आर यूज टू सिलेक्ट डिफरेंट यूजर इनपुट। आपने देखा एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म पे यूजर अपना डेटा फिल इन कर सकता है, जैसे कि बैंक्स करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस आपसे कहते हैं प्लीज फिल इन योर डेटा, तो उसके लिए आपको ना सिर्फ ये कि फॉर्म डिज़ाइन करना होता है बल्कि यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड यूजर इनपुट को भी रीड आउट करके कोऑर्डिनेट करना होता है। They are used to pass the data to the server, क्योंकि ये क्लाइंट साइड के ऊपर डेटा इनपुट हो रहा होता है, तो फिर इस इंफॉर्मेशन को सर्वर को वापस पास ऑन करना होता है, क्योंकि जब आप पेज खोलते हैं तो पेज डाउनलोड होके क्लाइंट पे आ जाता है। क्लाइंट के ऊपर आप सारी डेटा एंट्री करते हैं, जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं जैसे ही, तो वो आपका सारी इंफॉर्मेशन जो उस पेज पे आपने प्रोवाइड की होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न हो जाती है सर्वर को। सो फॉर्म कंटेन इनपुट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती है, चेकर बॉक्स हो सकता है जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू की सूरत में आता है, रेडियो बटन हो सकते हैं, और फाइनली आप उसके अंदर सबमिट बटन यूज करते हैं जो कि आपके फॉर्म को सबमिट कर देता है टू दी सर्वर। You can also contain select the list or different features like field set or legend or labels or different text area कि कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप उसके फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं लीव करता हूँ कि जस्ट गो थ्रू इट, और फिर आपको एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें आप एक फॉर्म डिफाइन की बनाइएगा और ये स्लाइड्स के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ कर लीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट इज़ द इनपुट, क्योंकि उसने आपने उसके थ्रू इनपुट लेनी होती है, तो इनपुट एलिमेंट इज़ यूज टू सिलेक्ट द यूज़र इंफॉर्मेशन। An input element can vary in many ways depending upon the input attribute. अब आपके एट्रीब्यूट एलिमेंट्स क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, चेकर बॉक्स है, पासवर्ड है, रेडियो बटन है, सबमिट बटन है, किस किस्म का है उसके साथ रिलेट करती है आपकी इनपुट। अगर इनपुट टेक्स्ट है तो इट डिफाइंस अ लाइन इनपुट, आप पूरी की पूरी एक लाइन टाइप करते हैं, वो लाइन ऑटोमेटिकली उस इनपुट वेरिएबल जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इनपुट टाइप रखी है टेक्स्ट, वो उस टेक्स्ट को असाइन हो जाएगी जो भी यूजर इनपुट देगा। फाइल नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम ब्रेक लास्ट नेम, उसके बाद आप लास्ट नेम एंटर करते हैं, जो यूजर टाइप करेगा वो उसके लास्ट नेम को असाइन हो जाएगा, फर्स्ट नेम जो आप एंटर करेंगे वो फर्स्ट नेम असाइन हो जाएगा। अगर ये पासवर्ड है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि आप फॉर्म के अंदर पासवर्ड को डिफाइन करते हैं, इनपुट इज इक्वल टू पासवर्ड नेम, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम पासवर्ड को स्पेशल कीवर्ड ट्रीट करते हुए व्हाट इट डज कि ये पासवर्ड फील्ड के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मास्क कर देता है एक एस्ट्रिक या डॉट। आज कब एस्ट्रिक्स पहले आते थे, अब वो डॉट्स आते हैं, वो बोल्ड किस्म के डॉट्स आपको नजर आ रहे होते हैं जो भी आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, तो वो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ब्राउजर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। रेडियो बटन है जो कि चूज करता है कि वन ऑफ द पॉसिबल इनपुट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा यू वांट टू रीड आउट के जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, तो इसमें से ऑब्वियसली रेडियो बटन में अगर आपके पास 2 की चॉइस है, 3 की, 4 की, तो वन ऑफ द चॉइस यू शुड बी एबल टू क्लिक, और जैसे आप दूसरी चॉइस करेंगे तो पिछली खत्म हो जाती है, और जब आप सबमिट बटन करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन विल बी सबमिटेड। चेकर बॉक्स क्या होता है, इट डिफाइंस बेसिकली लेट अ यूजर टू सिलेक्ट 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस।
फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि व्हीकल कौन सी है, अगर टाइप व्हीकल है तो फिर उसके अंदर बाइक है या उसके अंदर कार है, और मुख्तलिफ कम्बिनेशन में जब एक से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशंस जो है वो पिक करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूज़ करते हैं ऑप्शन को। सबमिट बटन जो है मैंने आपको बताया कि डिफाइन द सबमिट, और बेसिकली डेटा इज सेंट द पेज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। The file defined in the action attribute usually does something with the received input। क्या मतलब कि जब आपके पास डाउनलोड होता है फॉर्म के साथ एक अटैच फाइल होती है, उस अटैच फाइल में सर्टन वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, वेरिएबल नेम्स डिफाइन हुए होते हैं, उन वेरिएबल नेम के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिफाइन की होती हैं विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, और जब आप उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं तो वो डेटा असाइन हो जाता है, और जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो वो वापस सबमिट हो जाता है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप W3 स्कूल्स की साइट पे जाके ट्राई इट योरसेल्फ की ऑप्शन है, वो आप ट्राई करें और उसके बाद फिर आप अपनी लैब कंडक्ट कीजिएगा। सो ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो कि फॉर्म्स के साथ अवेलेबल है। विद दिस आई गेस के आई फ्रेम मैं स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको आई फ्रेम के बारे में ये बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नया पेज है वो विद इन द पेज खुले तो आप उसके लिए आई फ्रेम यूज करते हैं। आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेज पेज विद इन द पेज, और उसका सिंटेक्स है आई फ्रेम इज सोर्स इज इक्वल टू URL, और जनाब ये आई फ्रेम एंड हो गया। तो URL पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ दिस सेपरेट पेज, वो जो जहाँ से कि आपने पेज वे कराना। सेपरेट का मतलब नहीं है कि ओपन द पेज इनटू अ सेपरेट टैब, आप विद इन पेज के अंदर पेज को ओपन करना है, लेकिन टेक्स्ट तो लेकर आना है ना, इन्फॉर्मेशन तो लेकर आनी है। तो इन्फॉर्मेशन, हाउ यू ब्रिंग दैट इन्फॉर्मेशन, यू ब्रिंग दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटर सोर्स यूजिंग द URL। तो URL से आप इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, उसको लिंक करेंगे, page within the page will be open as a window and that information will be displayed within that particular page। और इसकी आप जब जाहिर है विंडो ओपन कर रहे हैं तो आप उसकी विंडो की साइज भी दे सकते हैं और परसेंटेज भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 80% पे, 25% पे, 30% की विंडो आप इसकी ओपन कर दें, या आप उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। और वो बॉर्डर है, बॉर्डर आपने रखना है, बॉर्डर कोलैप्स करना है, बॉर्डर यूज नहीं करना। अगर आप उसका फ्रेम बॉर्डर 0 कर देंगे तो वो बॉर्डर गायब हो जाएगा। Okay, this means iframe. So, dear students, I have tried my best to cover the majority concepts of the HTML hypertext markup language. So, I covered it up in 2 parts, part 1 and part 2. चंद चीज़ें जो हैं वो मैंने थोड़ी सी स्किप की हैं और मैंने आपको बताया है कि वो आप उसकी जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप ट्राई आउट कर सकते हैं। बट द पर्पज़ ऑफ दिस मॉड्यूल वाज, जो 2 लेक्चर्स पर मुश्तमिल था, कि आपको मैं टेस्ट दे सकूं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या, और आप किस तरीके से वेब पेज बनाते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर डिफरेंट रंग भर सकते हैं, साइजेस कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के ऊपर। सर्वर ब्राउजर्स जो है उन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करता है, सर्च इंजन जो है उसको आप क्या फैसिलिटेशन दे रहे हैं, और डिफरेंट स्टाइल CSS के साथ आप कैसे यूज कर रहे हैं। सो आई हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंशाल्लाह हमारा ट्रैक 2 जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट टाइम ट्रैक 2 के अंदर लेट अस सी कि मैं आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आता हूँ, जबकि ट्रैक 1 में आपको बताया हम अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह ने के बाद।